So, my dear friends, it is Sunday today, and though this is our first Sunday class since we have started our classes in 19 in 2020 and 21, 22, 23, 24, 25, 26. So we are about to complete 6 years in these classes, and because of some unavoidable reasons, you will be busy on Sundays this month and the next month because at the place of Sunday you will get other holidays. Okay, so and all Sundays we would have common classes for all the batches, and but the common thing will take place here. And today we have a listening session, and most of you know very well how we what we do in these sessions, listening session, सर ऐसा अन्याय मत करो। and it has been long since we have done anything regarding listening. And please switch on your cameras, each and everyone. Very good. So, who is there with the idea of Usha Devi? Sampath ji. I think who is there with the idea of Usha Devi? Kalpana. Where is Kalpana? Yes, sir. Where are you? So, some of you are new for this session, like the students of B22, and so for them, please listen to me so carefully that what you have to do. Open your notebook and get ready with pen. And today I'll tell you something, and you have to listen to it carefully. And then the points or the things that seem important to you, you can note it down in your notebooks. But the important thing is that please switch on your cameras. Yogesh, Anuj, Rakshit, and Kalpana. And let me see your face clearly. So get ready for it. If any problem, you can tell me. योगेश अपना कैमरा चालू करो. I think he is not here. Kalpana, are you here? Kalpana and Yogesh. So today I am going to speak and you can write down the title of today's listening session. That is very common. That is not a new thing for you. And I think you can get knowledge. So write down today's topic is the civilization of today. लिखो योगेश, कैमरा चालू रखा करो अपना. हेडिंग डालो. आज का टॉपिक है द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे. तो इस सेशन में आपको क्या करना है, कोई भी मीनिंग्स आप लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि नहीं आते हमको.
या कोई भी आप नोट्स लिख सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं B20 वाले और B21 वाले स्टूडेंट्स नो इट वेरी वेल। सो दिस इज फॉर class is for all, but the instructions regarding writing your vocabulary and notes is for B22 students. So my dear ones, we know very well that what is the meaning of civilization. Okay, so first and foremost, देखते चले जाइए आप। foremost, first and foremost आप लिखिए, जरा ध्यान से साउंड पे फोकस कीजिए। First and foremost, there are order and safety. This is the main thing of a civilization, that there should be safety, there should be order. Order means कानून व्यवस्था। If today I have a quarrel, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। If today I have a quarrel with another man, I do not get beaten merely because I am physically weaker and he can knock me down. लिख लो आप, एक बार फिर से सेकंड राउंड में लेंगे। I go, if someone does this with me, if someone beats me, if someone does anything like that, so I can go to law and the law will decide as fairly as it can between the two of us. Thus in disputes का पेज मैं फोटो मंगवाऊंगा भी, आप लोगों का लिख लो आप फटाफट से क्या लिखा है आप लोगों ने। अंजलि को विशेष रूप से कह रहा हूं मैं, ये पता नहीं कहां चली जाती है, कौन सी दुनिया। कल्पना कैमरा चालू करो अपना। Thus in disputes between man and man, right has taken the place of might. Moreover, इस तरह के एडवर्ब्स आते हैं, लिखिए। The law protects me. Protects, थोड़ा साउंड पे फोकस करोगे तो स्पेलिंग अपने आप आ जाएगी। The law protects me from robbery and violence. Nobody may come and break into my house, steal my goods, or run off with my children. Run off, O-double-F. Run off with my children. Of course, there are burglars, BURGLARS. Of course, there are burglars and thieves, but they are very rare, and the law punishes them whenever it catches them. Any doubt? Any meaning? Very simple vocabulary. Very simple. ये क्या लिखा तूने? देना। अरे अपना ध्यान रख लो, तूने क्या लिखा है और तूने क्या लिखा है छोड़ो, फोकस करो जरा आप अपनी चीज पे। रह गई वो पीछे, मुझे पता है, नहीं इसका ध्यान ही कहीं और होता है, चलती नहीं है साथ में, इसकी प्रॉब्लम मुझे मालूम है। सर मेरी आवाज ही कम आ रही है, मैं क्या करूं? हैं? मेरी आवाज ही कम आ रही है। कोई आवाज कम नहीं आ रही। सच्ची में सर? अब आ रही है बराबर। सर ये पास है जब आ रही है, इधर तो नहीं आए। हेड ईयरफोन लगा ले, कुछ और लगा ले, इसका इलाज तो तू ही करेगी ना। नहीं आ रही तो मत कर फिर। और वो लगाओ, पीछे रह नहीं जा, आ रही। पीछे रह जा, और क्या हो सकता है। मैं क्या करूं?
मेरी मुझे क्या पता हेल्थ, वो क्या नहीं करेगी, तो ये हेल्थ। तेरी प्रॉब्लम है यार, तू सॉल्व करेगी इसको। बाकी सबके पास तो मेरी आवाज जा रही है, तो तेरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर। क्लियर हो गया आपको जो तो मैंने बोला है अभी? कोई डाउट, कोई मीनिंग? चलिए आगे आ जाइए। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज how much this safety means. Without safety, those higher activities of mankind which make up civilization could not go on. So, safety is the most important thing of any civilization. And without it, we cannot imagine to build up a civilization. The inventor, बहुत सिंपल से वर्ड्स आ रहे हैं, सुनो, फोकस करो आप। द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट, लिख लो मीनिंग, लिख लो, पूछ लेना बाद में। द साइंटिस्ट फाइंड आउट, or you can say that the scientist could not find out anything, or the artist cannot make beautiful things if there is no safety. Without safety, new things cannot be invented, scientists cannot find out the new things, and artists cannot make beautiful things. So safety is very necessary. Hence, so, thus, order and safety, although they are not themselves civilization, means safety and order are not themselves civilization, but these are the things without which civilization would be impossible. Safety and order are not civilization, but very important part of civilization, very important tools of civilization. They are as necessary to our civilization as the air we breathe is to us. And we have grown so used to them that we do not notice them any more than we notice the air. Okay? Any doubt? Anything? Any meaning? सर, Hmm. Hmm. Yes. सर डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है? झगड़े, विवाद. For all that, they are both new things and rare things. Except for a short period under the Roman Empire, there have been order and safety in Europe only during the last 200 years. And even during that time, there have been two revolutions and a great many wars. Thus, it is a great achievement of our civilization that today civilized men should, in their ordinary daily lives, be practically free from the fear of violence. Means today, human being must be free from the fear of violence. They are also largely free
from the fear of pain, like they still feel ill. But since the use of anesthetics, लिख लो, anesthetics became common, illness is no longer the terrible thing it used to be. And people are ill much less often these days as they used to be. And the use of anesthetics also has made the operations so easy. To be healthy is not to be civilized savages. To be healthy is not to be civilized. Civilization and health is a different thing. Both are different things. Civilization and health. Civilization means the way of living without any quarrel, without any disputes, where all can enjoy their freedom. Savages are often healthy, although not so often as is usually supposed. But unless you have good health, you cannot enjoy anything or achieve anything. So it is necessary for us to be healthy. There have, it is true that there have been great men who have been invalids, but their work was done in spite of their ill health, and good as it was, it would have been better had they been well. Not only do men and women enjoy better health, they live longer than they ever did before, and they have a much better chance of growing up. Clear? Good out. सर Hmm. सर ये सेवेजेस का मतलब क्या है? जंगली. ओके सर. मतलब when people had no sense of living, they would quarrel, they would have fight among themselves for their rights. सर नो सेंस ऑफ. They used to be healthy but not civilized. सर नो सेंस ऑफ. No sense of सर यू सेड दैट सेवेजेस मींस नो सेंस ऑफ. living properly, having no sense of living properly without any quarrel, without any disputes. If you have any disputes with your neighbor or with anyone, then today you can go to police, you can go to courts, and court can decide. But in services types, this was not possible. वहां पे एक ही हिसाब चलता था, जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ. So that is not civilized manner. Third thing is that our civilization is more than any that have gone before it. Now we are talking about our civilization, modern civilization. This is because it is much more widely spread. Most of the previous civilizations known to history came to an end because vigorous but uncivilized people broke in upon them and destroyed them.
So now the question is that is there any danger? Are there any things that are dangers? As you know that the earlier civilizations were destroyed by uncivilized people, but now I think there is no chance of it because all around there is civilization, there are civilized people in any country. There are no kabilas or such like things. However, are there any dangers which threaten our civilization? Threaten, threaten. And they are many. It seems likely to escape this one. Previous civilizations were specialized and limited according to their area. They were like oases, oasis in a surrounding desert of savagery. Sooner or later, the desert closed in and the oasis was no more. लिख लो oasis में समझा दूंगा. But today it is the oasis which is spreading over the desert. Earlier, there used to be desert and there were so few oases on that desert. But now, in present civilization, there is oasis, and in some parts of that oasis, there are deserts. Modern civilization is a far flung thing. Far hyphen flung phrase है. Far flung thing. It spreads over Europe, America, and Australia, and great parts of Asia and Africa. Practically no part of the world is untouched by it. Untouched. 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 And owing to the powers of destruction with which science has armed it, means science has given us so many weapons, and with those weapons we can destroy anything. So with the help of these weapons, it is exceeding exceedingly verb ex c e d sorry ex c double e dingly, exceedingly. साउंड को पकड़ो. Exceedingly, exceedingly, unlikely. So with the help of these arms or with weapons, it is exceedingly unlikely that such savages that used to be earlier or uncivilized peoples as are left in the world could prevail against it. I'm not denying that there are not uncivilized or savages people in the world. They are, but in limited number. This is the difference. क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अब पूछो, आपको कुछ पूछना है तो. अरे सर ओएसिस मतलब, और सर स्पेलिंग क्या थी इसकी? OASES. ओके सर. सर मतलब अब ऐसे समझो क्योंकि यार कैमरे बंद हैं सबके यार, मुझे बड़ा इरिटेशन हो रहा है यार. भैया जिसको नहीं पढ़ना है अपने घर जाओ, पढ़ना है तो कैमरे चालू कर लो.
बस आखिरी बार कह दिया मैंने, नहीं मैं रिमूव करूंगा अब आपको यहाँ से। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से आपको, बिल्कुल रिमूव करने वाला हूँ मैं। एक भी नहीं बैठेगा बिना कैमरा चालू करे हुए, और किसी ने बंद किया ना कैमरा, उसी समय रिमूव कर दूंगा विदाउट एनी वार्निंग। बिल्कुल क्लियर समझ लो आप। अब सुनिए आप, ओएसिस क्या होता है। बहुत बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, चारों तरफ रेगिस्तान फैला हुआ है, ओके। या मैं तुमको एक और एग्जांपल दूं, मतलब ऐसे पूरा रेगिस्तान है, मान लो कोई बहुत लंबा चौड़ा, और उस रेगिस्तान में किसी छोटे से हिस्से में मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पर पानी है, कोई उपजाऊ जगह है, समझ गए मेरी बात आप, उसको हम कहते हैं ओएसिस। ओके सर। समझ गए आप। अब मैं यस आपको सर। समझाऊं ऐसे कैसे, समझिए आप जरा। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हम इस चीज से, मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको, कि पहले क्या होता था, असभ्य और जंगली प्राणी ज्यादा होते थे, और सभ्यता बहुत कम थी, ठीक है। तो उस बड़े रेगिस्तान को तो आप कंपेयर किससे कर लो, उन असभ्य और जंगली जातियों से। जंगली जो आदिवासी थे, जो जाति थी जंगली, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, और थोड़े से थे सिविलाइज्ड पीपुल। क्लियर हो गई बात आपको। अभी क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में हो गया उल्टा। अब ऐसा नहीं है कि वो जो जंगली लोग थे, या वो जो असभ्य लोग थे, या वो जो ऐसे लोग थे, कई बार फिल्मों में आप देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गए वो। लेकिन आज क्या हुआ है कि उस समय वो चीजें ज्यादा थी, और बीच में कहीं कहीं पर छोटे छोटे थोड़े थोड़े से क्षेत्रों में मान लो ये सिविलाइज्ड पीपुल हो गए। लेकिन अब समय के साथ साथ क्या हुआ है कि सिविलाइजेशन तो, मॉडर्न सिविलाइजेशन तो लगभग लगभग हर जगह फैल गई, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, ज्यादातर जगह। और वो जो असभ्य लोग थे, वो जो अनसिविलाइज्ड पीपुल थे, वो जो सेवेजेस मतलब जंगली जो लोग थे, वो रह गए थोड़े से। आगे मेरी बात समझ में क्लियर हो गई बात। तो अब इस बात का डर तो पहले जैसे सभ्यताएं कैसे खत्म, मान लो कोई अच्छी सभ्यता थी, वो छोटी सी थी, और उसके चारों तरफ गुंडे बदमाश ज्यादा थे, तो वो इतने सारे गुंडे बदमाश होते थे कि वो छोटी सभ्यता को खा जाते थे, खत्म कर देते थे। क्लियर हो गई बात आपको। अब क्या है, अच्छी सभ्यता, मॉडर्न सभ्यता ज्यादा हिस्से में है। और क्या, और उसमें भी साइंस ने ऐसे वेपन्स हमको दे दिए, और ऐसा नहीं है कि आज नहीं है वो असभ्य लोग, लेकिन कम है, छोटे हिस्सों में रह गए हैं। तो आज अगर वो जंगली लोग या असभ्य लोग अगर आज मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर अगर हमला करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस ने हमको बहुत सारे वेपन्स भी दिए हुए हैं। वी कैन डिस्ट्रॉय दोज थिंग्स, दोज सेवेजेस और अनसिविलाइज्ड पीपल विद द हेल्प ऑफ द वेपन्स दैट साइंस हैज गिवन टू अस। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? और कुछ पूछना? बोलो। सर मेयरली मतलब? ओनली, ओके सर। MERELY, मेयरली। पूछा करो मीनिंग साहब। सर सर फोरमोस्ट। इंपॉर्टेंट, सर मोस्ट मेयरली इंपॉर्टेंट। का मेयरली का मतलब आपने क्या बताया? ओनली, सर मुश्किल से भी तो होता है ना? वो कुछ और होता है। मुश्किल हार्डली, से होता है। हार्डली। हार्डली। सर ये जैसे अपन कभी कभी बोलते हैं ना, मेयरली है सर्वाइव डेट, मेयरली है पास्ट डेट, तो उसका वहां पे उसका मेयरली का मतलब? स्पेलिंग बोलो। MARELY।
कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो फिर मैं ही गलत होऊंगा सर। हाँ, वो मेयर होता है। वो मेयर होता है, जैसे आप कह दीजिए कि घोड़ी, MARE, और ये वाला जो मेयरली होता है ये MERELY। ओके सर। स्कार्सली हो सकता है, हार्डली हो सकता है, मुश्किल से के लिए, है ना। एनीथिंग एल्स? सर वो रन ऑफ था ना, इसकी मतलब पूरी। रन ऑफ का मतलब तो कम पड़ जाना या कुछ ऐसे होगा। नहीं सर, क्या था? किडनैपिंग चिल्ड्रन, रन ऑफ देयर चिल्ड्रन। सर बच्चों को उठा के फिर भाग जाना। हाँ, तो रन ऑफ का मतलब वही हो गया ना, क्या बताया था मैंने? कम पड़ जाना। रन ऑफ का मतलब भाग गया, भाग जाना हो गया, बिल्कुल सही है। रन ऑफ वो रनिंग आउट ऑफ होता है, कम पड़ जाना। हाँ, और बोलो। सर मैं जो बोल रहा था ना वो कि मुश्किल से, सर उसका मतलब बेरली होता है। हैं? वो बेयरली, यस बेरली। यस यस, बेयरली, यस। बेयरली, बेयरली, यू आर राइट, BARELY, यस। कम ऑन, और कुछ बात पूछो, पूछा करो ऐसे। एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं एक्चुअली? आप समझो इस बात को कि कुछ एक तरीके की दवाई होती है, दवाइयां होती हैं, जो हम हिंदी में कहते हैं निश्चेतक। कि जब किसी को ऑपरेट करना होता है ना, एक जमाना ऐसा होता था, किसी जमाने में जब ये सब चीजें नहीं होती थी, तो किसी को ऑपरेशन करना है मान लो, तो आज तो अगर किसी का ऑपरेशन करना होता है तो हम एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं, उसके पर्टिकुलर टू द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दैट इज अबाउट टू बी ऑपरेटेड, उस पार्ट को हम क्या करते हैं, सेंसलेस कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, और आराम से काटापीटी की जा सकती है। क्लियर? पर देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन देयर वर नो एनेस्थेटिक्स। तो उस समय कैसे करते होंगे? उस समय बहुत अजीब सा तरीका होता था। उनको किसी तरीके से इंटॉक्सिकेटेड किया जाता था, कोई नशा दिया जाता था, उनके हाथ पैरों को बांध दिया जाता था, वो चीखते चिल्लाते रहते थे, और फिर उसमें वो सारा काम किया जाता था। अब एनेस्थेटिक्स ने क्या किया है कि जब भी कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होता है, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें पूरा डिपार्टमेंट होता है एनेस्थेटिक्स का, कुछ डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, वो उस पर्सन को उसी जगह पर एनेस्थेटिक, एक्चुअली इंजेक्शन ही होता है, ये एनेस्थेटिक कोई चीज नहीं है। इस तरह की कोई एक केमिकल होता है, कोई दवाई होती है कि उसको हम, मतलब इस तरीके से उसको इंजेक्ट किया जाता है कि जिस हिस्से में हमें ऑपरेट करना है उसी हिस्से को ही वो पकड़ता है जाकर के। आगे बात समझ में? पहले, अभी जब तक ये एनेस्थेटिक्स नहीं आया था, उस समय इंसान को पूरा ही बेहोश किया जाता था, कर दो इसको पूरा बेहोश, होश ही नहीं रहेगा इसको। अब लेकिन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि उसी हिस्से को आप केवल हाँ, यस, मान लो इस उंगली का ऑपरेशन करना है, तो ये उंगली ही केवल आपकी सेंसलेस हो जाएगी, इस बस, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा आपका। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इन्वेंशन। सो एनीथिंग एल्स? हरी अप। एक्सीडिंगली। अत्यधिक रूप से, है ना। और लिख लो, पूछ लो, और थोड़ी सी आदत डालो डिक्शनरी यूज करने की। कोई भी मीनिंग आप लिख रहे हैं तो आप डिक्शनरी को यूज किया करो। सर हमारी डिक्शनरी तो आप ही हो ना। बेटा मैं हूं आपकी डिक्शनरी, लेकिन मैं हमेशा थोड़ी रहूंगा तुम्हारे साथ। यस सर। चलिए मैं आगे सुनाता हूँ, थोड़ा सा सुनिए, आज आप सुनने पे फोकस कीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में भी सुन सकते हो। सो thus the world has now for the first time a chance of becoming a single whole, because
Most of the things are the same in the world, in the every part of world. So far as buying and selling and the exchange of goods are concerned, it is a unity already. Globalization. We sell our things, our goods to other countries, and we purchase also many things from other countries. So, in a way, we can say that we have become united. We can go to other countries, and the people of other countries come here, and people also live in other countries, like Indians live in America and other countries also, and the people of other countries also live here in India. You know very well. They have become the citizen of that country. So, समझ में आ गया आपको ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे? For the first time in this civilization, in this modern civilization, the world is becoming a single place instead of a lot of separate places shut off from the another. पहले ऐसा नहीं था. एक कबीला है वो वहां रह रहा है, दूसरा कबीला वहां रह रहा है, आपस में उनका कोई तालमेल नहीं, झगड़े ही होते थे बस उनमें आपस में, है ना? अभी ऐसा नहीं है. अभी हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. अब समझिए मैं जो आपको आज बात बताने जा रहा हूं ना, ये दिस इज नॉट ओनली for improving your English, but also you can have a knowledge, a thing that may be useful for you in your life. You can enhance your capacity of thinking also. तो उस समय में क्या होता था, अलग अलग कबीले रह रहे हैं अपने आप ही, जैसे नहीं था क्या इंडिया के अंदर रियासतें थी, राजा थे, उनका सबका कितनी रियासतें थी, ओवर 500 अलग अलग राजा थे, उनका सबका अलग अलग रहता था, लड़ाइयां भिड़ाइयां खूब होती रहती थी, सब कुछ होता था. आज हमने सबको एक करके इंडिया एक कंट्री कर दिया कि नहीं कर दिया? पहले सब सेपरेट थे, अलग अलग थे, सबके अपने अपने फायदे नुकसान देखते थे, अब सब एक हो गए कि लाइक दैट. समझ गए ना? अब ऐसा नहीं है. अब उस समय छोटे छोटे कबीले एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे, रहते थे. वो कहते थे ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. समझ में आ गई आपको बात? माइट इज राइट. जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब जिसके पास ताकत होगी वो ले जाएगा. जंगल में होता है कि नहीं होता? छोटे छोटे जानवरों को बड़े बड़े जानवर मार देते हैं. जिसके पास ज्यादा ताकत है वो मार देगा, जिसके पास ताकत होगी वो बचेगा, नहीं तो मरेगा वो. जंगल का कानून यही कहता है ना. लेकिन अभी जो मॉडर्न हमारी सिविलाइजेशन है ना, और पहले इंसानों के बीच में भी ऐसा ही हुआ करता था. समझ गए आप मेरी बात को? एक कबीला दूसरे कबीले का दुश्मन होता था, एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के लोगों के दुश्मन होते थे. पर अब ऐसा है लेकिन बहुत कम रह गया है. मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, सब तरफ एक जैसी है. आज 200 से भी ज्यादा कंट्रीज आर इन टच with one another. We sell our goods to other countries, and we also purchase many things from other countries, you know very well. So this is a mutual understanding, and in a way we all, the people of the world, I'm not talking about the people of India, but the people of the world have come together. You can go to other countries so easily if you have passport and visa. You can live there if you have taken the citizenship of that country. And a lot of people, Americans, अमेरिका के अंदर इंडियंस नहीं रहते हैं क्या? बहुत रहते हैं.
इंग्लैंड में नहीं रहते क्या? अफ्रीका में नहीं रहते क्या? कहाँ नहीं रहते? वहीं के सिटीजन बन गए हो। क्लियर हो गई बात आपको? क्योंकि एक जैसा है सब जगह, सब जगह एक जैसा सिस्टम है, सब जगह डेमोक्रेसी है, सब जगह मॉडर्न सिविलाइजेशन है। आपको किसी भी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन गो टू पुलिस। पहले पुलिस थोड़ी होती थी, खुद ही निपट लेते थे। समझ गए ना मेरी बात को? आज तो आप जा सकते हो पुलिस के पास, तुमसे कोई बात होती है तो ये तो होती नहीं कि भैया तुम पुलिस के पास जाओ, आपस में कोई झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारे को कोई शिक्कत है, पुलिस में जाओ। और आपस में अगर झगड़ा करोगे भी आप तो आपको पकड़ा जाएगा और पुलिस वाले कहेंगे तू ज्यादा नेता बन रहा था क्या? तेरे को किसी ने अगर कुछ ऐसा किया तो तेरे को हमारे पास आना चाहिए था, ये लट्ठे लेके उसके घर में घुसना चाहिए था। कानून व्यवस्था नाम की भी तो कोई चीज होती है। ये है मेन मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात, और ऐसा सारे देशों के अंदर होता है। क्लियर हो गई आपको बात? ये समझ में आया कुछ? हाँ, कुछ पूछना है? अब देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। वन में से दैट फॉर सेंचुरीज, पहले ऐसा होता था, फॉर सेंचुरीज द नेशंस ऑफ मैनकाइंड लिव्ड इन अ नंबर ऑफ सेपरेट बॉक्सेस, अलग अलग बॉक्स। ये बॉक्स इसका, ये बॉक्स इसका, बस वही लिमिट है उनकी, बाहर नहीं आना ना कहीं जाना। होल्डिंग नो कम्युनिकेशन विद ईच अदर, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। समझ में आ गई बात आपको? है? कुछ नहीं होता था except when the people in one box invaded those in the next, and some of the boxes were never opened at all. समझ में आ गई बात आपको? कोई कम्युनिकेशन नहीं होता ही नहीं था, कोई बातचीत नहीं, कोई किसी तरीके की कुछ भी संबंध नहीं थे। जैसे एक बॉक्स है उसके अंदर पीपल रह रहे हैं, दूसरा बॉक्स है उसमें लोग रह रहे हैं। वो केवल कब होते थे? जब एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे, तब खुलते थे बॉक्स। लिमिटेड था एक एरिया, बस यहां से नहीं जाना। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? क्लियर हो गया? और उसमें भी क्या होता था कि कुछ डिब्बे तो ऐसे होते थे जो कभी खुलते ही नहीं थे, बंद ही रहो अपने तो। आई बात समझ में आपको? है ना? टुडे, टुडे द सीन इज डिफरेंट। सब बॉक्स खुले हुए हैं आज। खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए? आप किसी भी बॉक्स में घुस सकते हो, एक बॉक्स से निकल के। बॉक्स का मतलब यहाँ पर कंट्री, घुस सकते हो ना? पहले नहीं घुस सकते थे। एक राजा की रियासत है, उसमें अगर कोई दूसरे राजा दूसरे रियासत का आदमी आ गया तो खट से पकड़ लेते, चल लटकाएंगे तेरे को फांसी पे, तो घुस कैसे गया? आज तो आप जा सकते हो ना किसी भी स्टेट के अंदर, बाहर आपको जाना होता है तो आप वीजा लेके आप जा सकते हो आराम से। पहले काहे का वीजा था? पहले तो कुछ भी नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। आज तो है ना कम्युनिकेशन। समझ रहे हैं आप? टुडे देयर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखो, मीनिंग लिखा करो, मीनिंग आप सही गलत जैसा भी, आदत डालो थोड़ी लिखने की। कांस्टेंट फोकस करोगे तो स्पेलिंग भी आ जाएगी। कांस्टेंट, CONSTANT आ गई, यो ले स्पेलिंग। अब थोड़ा समझने की कोशिश भी करो आप मीनिंग्स को, है ना? मैं तो समझा ही दूंगा आपको, वर्ड्स को, मीनिंग्स को समझने की कोशिश क्या करो। टुडे देयर इज कांस्टेंट coming and going between the boxes. Boxes means countries. So much so that the sides of the boxes are breaking down. आ गया समझ में? आपने कभी नाम सुना होगा पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, सुना है कभी?
जर्मनी जो थी, उस जर्मनी के बीच में मतलब उसको डिवाइड कर दिया गया था एक टाइम में, दो कंट्री बन गई थी, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो दो बॉक्स बन गए। अब उसमें समस्या क्या हो गई, तुमने दीवार तो बना दी बीच में, अब लेकिन जो पूर्वी जर्मनी के जो रिलेटिव्स हैं वो पश्चिमी जर्मनी में और पश्चिमी जर्मनी में ले पूर्वी जर्मनी में, अब जाए कैसे आए कैसे क्या करें, उन्होंने तो लाइन खींच दी बीच में। आगे समझ में बात? लेकिन एक टाइम ऐसा आया, वो बॉक्स हो गए ना, दो अलग अलग हो गए ना बेटा, दो अलग अलग बॉक्स हो गए ना। अब एक टाइम ऐसा आया बेटा जब वो बॉक्स की दीवारें टूट गई, सच में, और वो एक हो गए। अब जर्मनी एक ही है, बस दो नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई? तो आज क्या हो रहा है, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। टुडे देयर इज कांस्टेंट coming and going between the boxes, so much so, और इतना ज्यादा आना जाना शुरू हो चुका है कि वो बॉक्स की दीवारें भी टूट गई। दीवारों को बार बार जाओगे, आप दीवारों को पार कर करके पार कर करके पार कर करके, सोचिए कितना मजा आ रहा है मुझे ये सब बोलने में। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, मैंने सडनली ऐसे ही निकाल लिया था कुछ आज। मैं चाहता था कि आपको सुने भी थोड़ा सा, बिकॉज लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लोग तो इवनिंग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं यहाँ भी। मैं फोटो मंगवाऊंगा बेटा, जब पता चलेगा किस किसने लिखा है किस किसने नहीं लिखा है, भी बताता हूँ मैं तुम्हारे को। कर लो अभी तो तुम मजे जितने करने हैं तुम्हारे, मैं बताता हूँ तुम्हारे को, अभी रुक जाओ। टुडे देयर इज कांस्टेंट कमिंग एंड गोइंग बिटवीन द बॉक्सेस, सो मच सो दैट द साइड्स ऑफ द बॉक्सेस आर ब्रेकिंग डाउन एंड द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू लुक more like one enormous box। आ गया समझ में? हो जाएगा धीरे धीरे। पहले भारत अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, 500 से भी ज्यादा बॉक्सेस थे, हो गए ना। अब वो एक बड़ा बॉक्स बन गया, इनॉर्मियस बन गया ना इंडिया। देयर इज नो डेंजर ऑफ एनी अननोन पीपुल। अननोन पीपुल का मतलब द पीपुल ऑफ अदर वर्ल्ड ब्रेकिंग इन अपॉन आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड डिस्ट्रॉइंग इट। अब इतना पॉसिबल नहीं, आपस में ये डब्बे लड़ लड़ के मर जाएं तो बात अलग है, लोग आपस में ही मर जाएं तो बात अलग है। बाकी अब बाहर का कोई व्यक्ति आकर के, बाहर का कोई कबीला या कोई जंगली जातियां या इस प्रकार के लोग अब हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। द डेंजर कम्स रादर फ्रॉम विद इन, अंदर से है खतरा। मैंने बताया ना आपको, जैसे अभी रूस की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अभी अमेरिका भी हमला करने के लिए तैयार बैठा है ईरान के ऊपर, ये अंदर की लड़ाई है। बाहर की लड़ाई कैसी होगी, कोई मंगल ग्रह के लोग आके हमारे ऊपर हमला कर दें, या फिर जो कुछ ऐसे समुदाय हमारे इस धरती के ऊपर इस संसार के अंदर हो जो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हो या जंगली हो, वो लोग हमारे ऊपर हमला कर दें, तो वो बाहर के लोग हो गए। पर वो इतने ही नहीं अब जो हमला कर देंगे, और अगर वो हमला कर भी देंगे तो साइंस हैज गिवन अस सो मेनी वेपन्स वी कैन डिस्ट्रॉय देम। अंदर का खतरा है, लेकिन अंदर आपस में अपन लड़ लड़ के मर जाएं, वो एक अलग बात है। समझ में आ रही है आपको बात? इट इज अ डेंजर फ्रॉम अमंग अवर सेल्व्स, अपने अंदर से ही खतरा है, हमारे को बाहर से कोई खतरा नहीं है अभी हाल फिलहाल तो। अभी जापान के 1946 के अंदर when there was attack on Hiroshima and Nagasaki, सो वो इनसाइड वाला ही तो था, वो बाहर से किसी ने थोड़ी किया था। सन 9/11 9/11 ले लो, बाहर से किसी ने थोड़ी किया है। समझ में आ गई बात आपको? बाहर से तो कोई खतरा है नहीं, अभी तो नहीं है। इस धरती के ऊपर तो ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने ऊपर कर दे। आपस में ही अपन, हाँ कोई मंगल ग्रह से किसी और ग्रह से आ जाए तो बात अलग है, बाकी
अभी तो अपने यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू आवर डिफेक्ट्स। अब हम जो बात करेंगे कि इस सिविलाइजेशन की अच्छी अच्छी बातें तो बता दी हमने, अब इसकी कमियां भी तो होंगी कुछ, तो आप हेडिंग डाल दीजिए कौन कौन सी कमियां हैं अब इसकी, तो आप हेडिंग डाल दीजिए द डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, सो कैसा लगा आपको ये सब कुछ? कुछ नॉलेज आपकी बढ़ी, कुछ समझ बढ़ी आपकी? समझ बढ़नी चाहिए, मेरा पर्पज ये है इन चीजों के साथ आपको कुछ समझ आपकी बढ़ी होगी, कुछ चीजों के बारे में, सभ्यताएं क्या होती हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है, समझ रहे हैं ना आप? पहले क्या होता था 200-300 साल पहले, 400 साल पहले, अब क्या होता है? पहले क्या होता था, माइट इज राइट, और अब क्या होता है, राइट इज माइट। सर माइट का मतलब क्या है यहाँ पे? ताकत। ओके सर। पहले जी कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होगी वो ले जाएगा। हाँ, प्रभु कहाँ हो, मुझे आप ना तो दिख रहे हो, ना ढंग से सुन रहे हो, मतलब ना तो सुनाई दे रहे हो, ना ढंग से दिख रहे हो, भगवान जाने कहाँ हो। सर यहाँ हम पे तो आपके दर्शन को तरस रहे हैं। आप वो छोटे से बच्चे का फोटो लगा के चले गए जो दांत निकाल रहा था। थैंक यू वेरी मच। जो मैंने बोला था हटा दे, पर नहीं हटाया उसने। तू तो बहुत ज्ञानी है, तू तो पता नहीं क्या क्या समझाती है इसको, बस दुनिया को सब कुछ समझाती है, तो बस तू खुद ही नहीं समझती, बस खुद ही नहीं समझती, बस दुनिया को तो बहुत ज्ञान देती है तू, महाज्ञानी। एक और प्राइज जुड़ेगा तेरे, भारत रत्न से भी ऊपर का कोई होता होगा तो वो दिलवाएंगे तेरे को। राइटिंग में तो ये 5-6 बार भारत रत्न के पुरस्कार जीत चुकी है। हम इसको ज्ञानी बाबा के नाम से इसको उपाधि दिलवाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।